A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and studying properly. अच्छे से आप सभी कोई पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी. Children, we are doing the revisions कर रहे हैं हम लोग. In terms of the revision, I started the chapter first. Where we have in the yesterday's video where we have discussed about interplay of nature and nurture, and today I am going to discuss with you the assessment of intelligence. How we do the assessment of intelligence. This is our topic. Assessment of intelligence means how we can measure intelligence, which is also one of the psychological attributes. I hope the topic is visible to you all and you all are also noting down with me. Okay. So, this is a topic which give you knowledge about how we measure intelligence. When we talk about the assessment of intelligence, so always a term came which is the IQ. The full form of IQ is Intelligence Quotient. IQ का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट. देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ द IQ. इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एंड द फॉर्मूला इज IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA और MA डिवाइडेड बाय CA multiplied by 100. Here MA denotes for mental age and CA denotes for chronological age. MA denotes for mental age and CA denotes for chronological age. Chronological age is also known as biological age. इसे हम biological age कहते हैं और you can say that your birth age. पर्सन का जो birth age होता है that how old are you? 4 years old, 5 years, 6 years. That is your chronological age. And mental age we usually calculate. And that we calculate by the help of some kind of test. We conduct some of the intelligent tests. There are so many psychometric tests, so many type of intelligent tests which we are going to discuss on. अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे. So these are the different kind of intelligence tests, and by doing that one we will be able to measure someone's MA. So when you find out the score of the MA, आपके पास MA का score आ जाता है, it will be easy to calculate the IQ. You will be able to know about the other person's IQ. This IQ have different ranges. There is a table which is given in your NCERT, which is a categorization of the ranges and their descriptions were given. So let us discuss about that one. So you understand how we measure the intelligence. So we measure the intelligence with the help of this formula. IQ is equal to MA upon CA into 100. Now we are going to discuss about those IQ ranges. So you will get a chart like this one, IQ range. And the description is written over here. IQ range and description. IQ range above 130. Then इसके below हम लोग जाते रहते हैं 130 to 120.
120 to 110, 110 to 95, 95 to 85, 85 to 70, and then came the below 70. Okay. Above 130 is a gifted child. जिसकी IQ, whose IQ is above 130, that would be the gifted, superior one. Okay. And below 70 is the intellectually deficient or mentally retarded. In this category, those people who came the mentally retarded. ठीक है. Average is this category. Then इससे ऊपर above average हो जाएंगे. And average से नीचे वाले come in this category below average. ठीक है. ये हाई इंटेलिजेंट है और 85 to 70 लो. सो इस तरीके से कुछ टेबल रेंजेस बताए गए हैं. और if you know the high range and the low range and the average, you will be able to make a chart like this one of the middle ones also. मिडिल में जो आएंगे उनके भी आप बना सकते हो easily. ठीक है. सो असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इसी तरह होता है ऑन द बेसिस ऑफ द IQ फॉर्मूला. ओके, वी कैलकुलेट द इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. उसके इंटेलिजेंस को हम मेजर कर लेते हैं. फाइन. और इस तरीके से फिर हम इसे टेबल में देख के ये वी एनालाइज, वी डू द एनालिसिस दैट इफ द IQ इज बिटवीन दी 130 to 120, इट मीन्स वेरी हाई और सुपीरियर इंटेलिजेंस. अबव 130 हैं तो गिफ्टेड हैं. तो इन दिस वे वी कैन डू द एनालिसिस ऑफ द स्कोर विच वी गेट. ओके, we can describe those score. So this is all in the assessment of intelligence which you have to learn. और then इसके बाद you have to differentiate between variations in intelligence. Intelligence में क्या है? Variations है. Now we are going to discuss about variations in intelligence. क्या है? Variations है. Variations in intelligence means intelligence level और intelligence में भी variations हैं, changes हैं. Some are intellectually gifted, some are mentally retarded, some are intellectually deficient, some are intellectually gifted. So variations क्या है? Intellectually deficient versus intellectually gifted. Intellectually deficient versus intellectually gifted. Okay. इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट किसे कहेंगे? दोज हु IQ इज बिलो 70, जिनकी IQ 70 से कम है. इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट को हम मेंटल डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड भी कहते हैं और इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट चाइल्ड भी कहते हैं. ठीक है. देयर इज अ फेमस डेफिनेशन ऑफ AMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी ने डिफाइन किया है कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या है? इट इज अ सब एवरेज इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द पीपल, एंड
problem in adaptive behavior, and it is shown or manifested during developmental period. Okay, that is at the age of 18 year. So AMD का कहना था कि जिनमें इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होती है इट इज समथिंग काइंड ऑफ सब एवरेज, यानी एवरेज से भी कम, और प्रॉब्लम होती है अडेप्टिव बिहेवियर नहीं कर पाते हैं, डेफिसिट इन द अडेप्टिव बिहेवियर, एंड ये जो है डेवलपमेंटल पीरियड में दिखने लगता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसकी जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, इट वाज शोन कि उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई कमी है। तो इट इज शोन इन द चाइल्ड ड्यूरिंग हिज और हर डेवलपमेंटल पीरियड। So second category after the deficient is the gifted. Gifted are those who are intellectually gifted, who are whose IQ, we can say, whose IQ is above 130, जिनकी IQ जो है above 130 है, 130 से above है। It means they having a kind of superior ability, high level of thinking power, गिफ्टेड होते हैं, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होते हैं। IQ जब आप उनके कैलकुलेट करेंगे तो इट यूजुअली रेंज अबव 130। वन मोर थिंग विच आई वांट टू डिस्कस इन डेफिशिएंट आल्सो, दिस इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वर आल्सो कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट। ये भी 4 पार्ट्स में कैटेगराइज हैं। 4 पार्ट्स आप कह सकते हो या फिर लेवल्स हैं। ओके, जैसे जो डेफिशिएंट भी होते हैं उनके 4 लेवल्स होते हैं, लाइक माइल्ड, moderate, severe, profound। ठीक है, ये इसके 4 लेवल्स होते हैं। आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल प्रॉपरली। आई एम सेग्रीगेटिंग इट ऑल्सो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ठीक है, let me write it more clearly so that it is properly visible to you all। ठीक है, फर्स्ट लेवल इज माइल्ड, सेकेंड इज मॉडरेट, थर्ड इज सीवियर, फोर्थ इज प्रोफाउंड। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। सो IQ का रेंज हमने बताया कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट में कौन आते हैं, जिनकी IQ लेस देन 70 है। तो ये लेवल्स भी इसी तरह डाउन में जाएंगे, लाइक माइल्ड का 70 to 55, मॉडरेट 50 to 45, सीवियर 45 to around 35 और 25, एंड प्रोफाउंड का जो लेवल होता है दैट इज बिलो 25। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन एंड द स्केल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। ये इनके डिस्क्रिप्शन है। नाउ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन एवरी रेंजेस देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट लेवल। लाइक इफ वी डिस्कस अबाउट इट, सो दोज हु आर हैविंग द माइल्ड, जो जिनका माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होता है या माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है, तो दे विल बी एबल टू डू समथिंग। वे अपनी चीज़ें फिर भी कर सकते हैं इफ़ द ट्रेनिंग इज़ गिवन टू देम, इफ़ द अटेंशन इज़ गिवन टू देम। अगर आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उन्हें अटेंशन देंगे, तो वो फिर भी ये माइल्ड मतलब इस लेवल में भी होने के बावजूद भी
उनके लेवल है 70 to 55 रेंज IQ होने के बाद भी दे विल बी एबल टू डू सम ऑफ देयर टास्क easily with a proper training. But this is not possible in the case of moderate, severe or profound. In the case of severe and profound तो it is something impossible. आप अगर उन्हें कितना भी ट्रेनिंग दे दो फिर भी वे they are totally dependent on other one. Profound वाले तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, they are completely dependent on other one. वो दूसरों पे ही डिपेंड होते हैं, वो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सीवियर केस होता है, उनका IQ बिलो 25 है तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, सीवियर प्रोफाउंड है केस है. माइल्ड एंड मॉडरेट पीपल विल बी एबल टू डू समथिंग विद अ प्रॉपर ट्रेनिंग. उनको अगर ट्रेन किया जाए और उन्हें हेल्प की जाए एक टू सम एक्सटेंट तो दे विल बी एबल टू डू देयर वर्क. ओके, so these are some of the levels which you have to revise in intellectual deficiency part. So children, we have discussed the assessment of intelligence. We have revised intellectual deficiency, okay, which come under the part of the variations in intelligence. Now we will discuss about intellectual giftedness. Okay, giftedness just like mental retardation में levels थे, similarly children आपको इसमें भी levels दिखेंगे. Intellectual giftedness. In this also you will see the levels. Like जैसे कि down to up हम जाएंगे तो talent, then prodigy. आपने बहुत बार you all might have heard this word prodigy, and gifted. ठीक है, सो लेवल ऊपर मैंने डाउन टू अप गए हैं हम लोग. ठीक है, सबसे नीचे में जो आते हैं टैलेंट पीपल. टैलेंटेड वो होते हैं दोज हु हैव अ मास्टर्ड और दोज हु हैव गुड स्किल इन वन ऑफ द एरिया. उन्हें हम टैलेंट कहते हैं. जैसे कोई बहुत अच्छा गाता है, somebody sings well, somebody dance well, तो वो टैलेंट है. Prodigy means more than one area. They have a master in more than one. कुछ लोगों को आपने शायद सुना होगा कि they sing well also and they dance well also. ये रेयर होता है, तो that is known as, वो लोग क्या होते हैं, वो prodigies होते हैं. They are not talented. वो prodigy, वो talent से भी ऊपर है, क्योंकि वो सिर्फ एक एरिया, they are not only restricted to one area, they were talented in 2 areas. And now we are talking about gifted. तो ये तो ऐसे हैं those who have a command over all the area. कोई ऐसा एरिया ही नहीं बचा है जिसमें इनका कमांड ना हो. they gain a mastered in each and every area. हर एक एरिया में उनका मास्टर्ड होता है, गिफ्टेड का. Now we have to discuss about or revise about some of the characteristics of gifted children. Gifted child के characteristics क्या होते हैं? What should be the characteristics of the gifted child? So the term giftedness, this is a term giftedness which is given by the Lewis-Terman. Lewis-Terman ने दिया. जैसे IQ का कंसेप्ट जो था विलियम स्टर्न ने दिया था. गिफ्टेडनेस टर्म जो था दैट वाज गिवन बाय द लेविस टर्मन. ठीक है, इन 1925. He defined the giftedness in the form of ACC. Means A for ability, high ability, high creativity और high commitment. High ability, high creativity और high commitment. ACC. ठीक है, चलिए
इसे इन्होंने पाई चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है. आई होप आपने इसे नोट डाउन किया होगा. सो आई एम रबिंग इट. You can see the 3 circle. It was denoted by the 3 circle. Here is the G, giftedness. Should I make it again in a very proper manner so that it will be shown to you? First circle, second circle, so it is clear. Here is the G. This is A, this is C, and this is another C. So this is the circle, 3 circle, which is defining the giftedness. जो define कर रहा है किसे? giftedness को. ठीक है, आगे बढ़े. अब हम लोग giftedness की characteristics पढ़ेंगे, qualities पढ़ेंगे. What are the qualities and the characteristics of a gifted person? इनकी qualities या characteristics क्या होती हैं? What you can say? क्या characteristics and quality होती होंगी? सबसे पहले the first characteristic and the first feature should be high level of logical thinking. High level of लॉजिकल थिंकिंग. इनकी थिंकिंग जो होती है बहुत हाई लेवल की होती है. सेकेंड, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड. अंदर से वे लोग मोटिवेटेड होते हैं. इंट्रिंसिक, देवर 2 काइंड ऑफ मोटिवेशन चिल्ड्रन. देवर 2 काइंड ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. दैट इंट्रिंसिक से ये वर्ड बना है इंट्रिंसिकली. ठीक है. इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स इंटरनल और एक्सट्रिंसिक मीन्स समथिंग एक्सटर्नल. सो मोटिवेशन कैन बी ऑफ 2 काइंड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मोटिवेशन ज़्यादा बेटर होता है. आप अपने आप को खुद से मोटिवेट करते हो आगे बढ़ने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ना कि कोई और आपको मोटिवेट करे या फिर किसी रिवॉर्ड और इन्फोर्समेंट के लिए आप अगर मोटिवेट हो रहे हो टुवर्ड योर गोल, तो दैट इज़ एन एक्सट्रिंसिक. कोई और चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है अपने गोल के टुवर्ड जाने पे. ठीक है. सो हाई लेवल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड. ये जो होते हैं, जो गिफ्टेड होते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वे खुद से अपने आप को मोटिवेट करते हैं. हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है इनमें. थर्ड, हाई लेवल ऑफ जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी. जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन की जो एबिलिटी होती है वो भी हाई लेवल की होती है गिफ्टेड लोगों में. जनरलाइजेशन एंड discrimination ability. Generalization means ability to generalize, means ability to sort out the similar things. छोटे बच्चों को नहीं बोला जाता कि इनमें से जो सिमिलर्स है उनको एक तरफ कर लो, जो अलग है अलग कर लो. ओके. तो जनरलाइजेशन मीन्स बहुत सारी चीज़ों में से अगर आप सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर ले रहे हो, तो इट मीन्स यू हैव अ जनरलाइजेशन एबिलिटी. And how quickly you are finding out, that also matter. ठीक है. तो इनमें जो होता है जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी होती है, और दैट शुड बी ऑल्सो ऑफ हाई लेवल, हाई लेवल की होती है. फोर्थ, प्रेफरेंस फॉर बीइंग सॉलिटरी. अकेले काम करना चाहते हैं. ठीक है. सॉलिटरी वर्क करना चाहते हैं, अकेले करना चाहते हैं. नॉट वांट टू बी इन ग्रुप. ठीक है.
अकेले सारी चीज़ें करना वो चाहते हैं, प्रेफरेंस फॉर बीइंग सॉलिटरी. सो दीज आर सम ऑफ द characteristics of a gifted children. So I hope you all have revised it with me. If you want to take a screenshot, you can take a screenshot or you can write it down. I'm going to rub it. चलिए, आई होप गिफ्टेडनेस भी आपको क्लियर हो गया. यू क्लियर अबाउट द यू ऑल्सो क्लियर अबाउट द इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट एज वेल एज द गिफ्टेडनेस. ओके, so the two things we have discussed, children. Okay, now the another part is I'm going to discuss with you from this chapter only is the intelligence test. See, these all topics I have teach you in a very well manner and I have made the videos also, okay, in a very detail. Here I am just doing the revision, so I am doing in a hurry also कि ये मान के मैं चल रही हूँ कि आपने इसे पढ़ा है, so रिवाइज आप कर रहे हैं मेरे साथ. As this chapter will complete, so I will discuss with you objective type questions also. Okay, so intelligence test. Intelligence test, yeah, there are different kind of intelligence tests, children. You should know about it. First is individual and group. Okay. Second is verbal, non-verbal, performance, third is culture fear and culture bias. Culture fear and culture bias. So three kind of tests are there: individual, group, verbal, non-verbal, performance, culture fear and culture bias. First is individual and group. यानी कुछ इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पे कराते हैं, यानी आप सिर्फ एक पे करा सकते हो. कुछ होते हैं जिन्हें आप ग्रुप में करा सकते हो. तो सम ऑफ द इंटेलिजेंट टेस्ट आर टू बी कंडक्टेड ऑन इंडिविजुअल ओनली एंड सम ऑफ देम आर कंडक्टेड ऑन ग्रुप. नेक्स्ट कैटेगरी इज वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस. कुछ टेस्ट होते हैं जो कि वर्बल होते हैं. वर्बल मीन्स ओरल और रिटन बोथ, यानी जिनको आप ओरल भी करा सकते हो या रिटन भी करा सकते हो. नॉन वर्बल टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें कि एग्जाम्पल्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, ये नॉन वर्बल होते हैं. परफॉर्मेंस जिनमें आपको एक्ट करना होता है, आपको कुछ एक्शन करना होता है, यानी कोई ऐसी चीज़ें आपको दी जाती हैं जिसको आप एक्शन के थ्रू करोगे और ऑन दैट बेसिस वी मेजर योर इंटेलिजेंस लेवल. So, but most of the time in order to measure the intelligence, in order to measure the mental age, we use the verbal ही use करते हैं. But verbal की एक demerit ये है कि इसे सिर्फ educated लोग ही कर सकते हैं, ठीक है. But non-verbal और performance can be done by the uneducated person also. जो uneducated हैं, illiterate हैं, वो भी इसे कर सकते हैं. But verbal के लिए literate होना ज़रूरी है क्योंकि वो oral और written form में हो रहा है. थर्ड कैटेगरी है कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस. नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर और यहाँ पे लिखा है बाय. फेयर यानी विच इज अप्लाइड टू एवरी कल्चर, जो सभी कल्चर पे अप्लाई है. और बायस यानी जिसे आप किसी स्पेसिफिक कल्चर पे कर सकते हो. तो कुछ ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट भी होते हैं जो कल्चर फेयर होते हैं और कुछ होते हैं जो कल्चर बायस होते हैं. कल्चर फेयर यानी इट कैन बी अप्लाइड टू एवरी कल्चर and culture bias means it is something specific to the culture. हर एक पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. So here I had given you the description of the intelligence test also. Like some of the example you can take it like non-verbal का example RPM है. It can be asked in your objective type question. RPM के बारे में पूछ सकता है.
RPM का फुल फॉर्म होता है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस. प्लीज नोट इट डाउन, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस. तो ये एग्जाम्पल नॉन वर्बल का है, जैसे इनकम्प्लीट पिक्चर दी रहेगी जिसे आपको कंप्लीट करना होगा. और एलेक्जेंडर को-ब्लॉट डिजाइन टेस्ट परफॉर्मेंस का एग्जाम्पल है. एलेक्जेंडर को-ब्लॉट डिजाइन, इसमें ब्लॉक्स बने होते हैं, पैटर्न आपको शो किया जाता है, बोला जाता है इस तरीके से आपको बनाना है. रिकॉर्ड होता है आपकी टाइमिंग, एंड जितना जल्दी आप बना सकते हैं वो ही आपके इंटेलिजेंस को शो करता है. उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्टोरिंग और इंटरप्रिटेशन होती है. तो दैट इज अ नेम इज एलेक्जेंडर को-ब्लॉट डिजाइन टेस्ट. ये परफॉर्मेंस टेस्ट है. और RPM is a non-verbal test. So in this video today children, I had revised with you assessment of intelligence and variations in intelligence and types of intelligence test. इसके बाद का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप क्विकली वी आर डूइंग द रिविजन्स एंड यू ऑल्सो रिवाइजिंग विद मी. So keep watching the video and revise with me children. Thank you so much. This is for all and keep learning. Study करते रहेंगे. Thank you.